Everyone, this is Akshay from ADINA College of Pharmacy, and I am today presenting lecture on the environment. We are studying the important liners. Today is 27 March 2020, and we are studying dense fog. Dense fog is a cloud with its base on the surface, which reduces visibility of 1/4 of a mile or less. So dense fog क्या है? Is a cloud है with its base on the surface, which reduces its visibility of 1/4 of a mile or less. So Department of Environment and Natural Resources is the primary agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources. तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? इज द प्राइमरी एजेंसी. क्या है ये? इट्स अ प्राइमरी एजेंसी responsible for the conservation, management, development, and proper use of country's environment and natural resources. क्यों यूज होता है? इट्स द प्रॉपर यूज ऑफ द एजेंसी responsible for conservation, management, development, and proper use of the country's environmental and natural resources. So depression is an area of a low pressure, a low or a trough. Depression क्या है? Is an area of low pressure, a low or a trough. Okay. Now the Department of Environmental and Energy Resources means its full form is very important. So it's very important. You have to learn this full form. It's the primary agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and the natural resources. Okay. Now, desertification. Desertification is the spread of desert-like condition. Desertification क्या है? Is the spread of desert-like condition in arid or semi-arid areas due to overgrazing, loss of agriculturally productive soils और climate change के कारण जो कंडीशंस पैदा होती हैं हमारी एरिड और सेमी एरिड एरियाज में. क्यों होती हैं? ड्यू टू ओवरग्रेजिंग, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव सॉइल्स और क्लाइमेट चेंज के कारण. इसको क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ड्यू. Dew refers to a moisture that has condensed on object. Dew क्या है? Dew refers to the moisture that has condensed on objects near the ground whose temperatures have fallen below the dew point temperature. जिनका टेम्परेचर फॉलन बिलो किसके हो गया है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के हो गया है. जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, is colorless, odorless insecticide that has toxic effect on most animals, and it was banned in the US since 1972. तो DDT क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. तो ये आपको याद होना चाहिए इसका फुल फॉर्म. इसका DDT का कि DDT क्या है? DDT इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये कैसा होता है? कलरलेस ओडरलेस इंसेक्टिसाइड होता है और इट इज बैंड इन द US since 1972. Okay. Now Doppler effect or Doppler shift is the change in the frequency of a wave. Doppler effect or Doppler shift क्या है? Is the change in the frequency of a wave for an observer moving relative to its source. It is named after the Austrian physicist Christian Doppler, who proposed it in 1842 in Prague. Okay. Now dredging. Dredging is also important. Okay. Dredging क्या है? It's also important. Dredging is the practice of deepening an existing waterway. कैसा है? Deepening an existing waterway. जब भी हम किसी गहरी खुदाई करते हैं वाटरवे में, उसको क्या कहते हैं? Dredging is also a used technique used for collecting bottom dwelling marine organism. इस टेक्निक से क्या होते हैं? बॉटम ड्यूलिंग हम मैराइन ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे शेलफिश, और हार्वेस्टिंग कोरल, often causing significant destruction of reef, ocean and floor ecosystems. Okay. Now the next important term is drift net fishing. Drift net fishing is done with the net. ये किसके द्वारा होती है? नेट के द्वारा. Miles in nested that is generally anchored to a boat and left to float with the tide. और ये generally anchored with the boat होती है और left to float with the tide होती है. Often result in an over harvesting and waste of large population of non-commercial marine species by its effect in the sweeping in the ocean clean.
बाय इट्स इफेक्ट इन द स्वीपनिंग ऑन द ओशन क्लीन में होती है. ओके, नाउ वी कम टू द ड्रिजल. Drizzle is fairly uniform precipitation composed exclusively of fine drops very close together. Drizzle क्या है? Is a fairly uniform precipitation. क्या है? Fairly और uniform precipitation है. Composed exclusively of fine drops which are very close together. Okay. So this is called drizzle. Drizzle is fairly uniform precipitation composed exclusively of fine drops very close together. When we talk about draft refers to a prolonged period of less than normal precipitation, such as the lack of water causes a serious hydrologic imbalance. तो ड्राफ्ट क्या है? सूखा. इज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लेस देन नॉर्मल precipitation. मतलब is a less than normal precipitation, such as the lack of water causes a serious hydrologic imbalance. क्या कॉज करता है? Serious hydrologic imbalance. जब हम ड्राई डिपोजिशन की बात करते हैं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रेन प्लस ड्राई डिपॉजिटेड एसिड. तो ड्राई डिपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रेन एंड प्लस ड्राई डिपॉजिटेड एसिड की फॉर्म बात करते हैं. अर्थक्वेक इज द सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ और की आउटर लेयर. तो जब भी हम ड्राई डिपोजिशन की बात करते हैं, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रेन प्लस ड्राई डिपॉजिटेड एसिड की कॉम्बिनेशन होता है. किसका होता है? Dry deposition is the combination of acid rain plus dry deposited acid का combination होता है. जब भी हम इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इज द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस फॉर फ्यूचर जनरेशंस. ये क्या होते हैं? इज द मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं. और ये फंक्शंस किसके लिए करते हैं? फ्यूचर जनरेशंस के लिए करते हैं. जब भी हम इकोसिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट इज इकोसिस्टम. तो जो इकोलॉजी है वो टर्म किस में आता है? इसके के अंदर आता है क्या? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी. जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इज द कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकियोस विच मीन्स हाउस. इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके, तो जब भी हम किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स की रिलेशनशिप उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ करते हैं तो इस स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी. Ecosystem is a higher level of organization. It is the interaction of living things to their physical environment. ठीक है, ये क्या है? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स किसके साथ है? फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ है. इकोसिस्टम इज द सम ऑफ ऑल द इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट अमंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? इज द सम ऑफ ऑल द इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ होता है. Ecosystem refers to the ecological units comprised of complex communities of organisms and their specific environments. तो ये रेफर करता है इकोलॉजिकल यूनिट्स कंप्रोमाइज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की बात करता है. जब भी हम एफ्लुएंट्स की बात करते हैं तो एफ्लुएंट्स रिफर्स टू द वेस्ट मटेरियल सच एज स्मोक, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट. जब भी हम एफ्लुएंट्स की बात करते हैं तो ये रिफर्स करते हैं किसको? वेस्ट मटेरियल को, सच एज स्मोक, सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट which are released into the environment subsequently polluting it. जो कि रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में सब्सिक्वेंटली उनको पल्यूट करके. जब हम एल नीनो की बात करते हैं तो इज द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम, ओशन करंट्स, वाटर टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न्स दैट सीम टू बी लिंक्ड वर्ल्ड वाइड चेंजेस इन द वेदर. जो क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड चेंजेस करते हैं किसमें? वेदर में. तो एल नीनो है क्या है? क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का पैटर्न है that occurs across the tropical Pacific Ocean roughly every 5 years. किसमें होता है? roughly every 5 years में होता है. जब हम इलेक्ट्रिक ईल्स की बात करते हैं, are able to generate voltages in their body to serve as predatory और defensive weapons. तो ये generate voltage करते हैं in their body to serve as a predatory and defensive weapons. They detect or stun their prey via high voltage generated from modified muscle cells called electrolytes. तो ये जनरेटेड कहाँ करते हैं? मॉडिफाइड मसल सेल्स से, जो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोसाइट. दीज ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोजेनिक. क्या होते हैं? इलेक्ट्रोजेनिक कहलाते हैं. जब भी हम इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं तो रिफर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रेटेंड विद द एक्सटेंशन बाय एंथ्रोपोजेनिक और अदर नेचुरल चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. जब भी हम इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं तो रिफर्स टू द क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म.
थ्रेटेंड होते हैं किससे? एक्सटिंक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मैन कॉस्ट और अदर नेचुरल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ओके, जब भी हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? इज द रिडक्शन ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी एनर्जी यूज्ड एंड वेस्टेड। क्या होता है? इज द रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी एनर्जी यूज्ड और वेस्टेड। सो इथेनॉल इज एन अल्टरनेटिव automotive fuel derived from a grain and corn usually blended with gasoline to form gasohol। so ये एक इथेनॉल क्या है? अल्टरनेटिव ऑटोमोटिव फ्यूल है विच डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेन एंड कॉर्न। किससे ये होता है? ग्रेन और कॉर्न की फसल से होता है इथेनॉल। इट्स ब्लेंडेड विद गैसोलिन टू फॉर्म गैसोहोल। इसकी क्या करता है? गैसोलिन के साथ ब्लेंड करता है टू फॉर्म गैसोहोल। व्हेन वी टॉक अबाउट यूट्रोफिक लेक्स refers to the shallow murky bodies of water, okay,